So here is the, okay. So gentlemen, I was talking about the the newer trend is that the computing power has increased. And I gave you an example that 20 years back, the first PC which I bought was a Pentium 1 computer, was a Pentium 1 computer with the specification 120 166 megahertz processor, 2 GB hard drive, not the RAM, hard drive, 64 MB or 128 MB of RAM, if I don't remember correctly. So this was the specifications. And when I show you the specification of my today's computer, so I showed you, gentlemen, that my computer has a 1.6 gigahertz 4 core 8 logical processors in a single computer. I showed you that I have a 1 terabit hard drive in this computer, and I have a 1 terabit in my pocket, which means I have 2 terabit, 2 tera, huge, as compared to 2 gig. Now I have 2 tera, and you know the difference between gig and tera. Gig is 10 to the power 9, tera is 10 to the power 12, only 1,000 times more. Huge increase in the computing power, huge increase in the computing power को computing चीजों को store करना है. उस वक्त my RAM was only 64. Today my RAM is around 20 GB. So from this it can be easily it can be seen, or it can be what we can infer from this, that the computing power has increased too much. Number two, I told you that at that time that computer was carrying only a 56K modem, and this 56K modem was not giving me more than 2 to 6 kilobit per second. This was the speed mostly I was getting. As compared to this, gentlemen, in the morning I was downloading some of the files, and I found that I am downloading at 8 megabit per second, while my subscription to the PTCL is 8 megabit per second. तो मैं उसी पूरा completely 8 megabit per second में मैं डाउनलोड कर रहा था. तो that was ये जो आपके लेक्चर्स थे, B सेक्शन में शामिल नहीं है, A और C के लिए जो मैं लेक्चर रिकॉर्ड किए थे, I provided them these lectures, and I downloaded these two files from the Google Drive, and it was 8 megabit per second. तो कहाँ 2 to 6 kilobit per second, और कहाँ 8 megabit per second, और 400 megabytes की फाइल मैंने डाउनलोड की, और फिर ये 400 megabytes की फाइल मैंने YouTube पे मैं वो कर देता हूँ, YouTube पे डाल देता हूँ ताकि आप लोगों तक पहुंच जाए. तो that shows the communication, that the communication has become faster. इसके अलावा मैंने आपके साथ ये बात भी शेयर की थी कि मेरे इस महीने की लास्ट मंथ जो गुजरा है मार्च का प्रॉब्ली, उसमें जो मैंने डाउनलोड किया वो 250 गीगाबाइट से ज्यादा है, which becomes, अगर इसको मैं 30 में डिवाइड कर दूं तो तकरीबन, अगर मैं कैलकुलेटर ले लूं और 250 गीग को मैं 30 डेज पे डिवाइड कर दूं तो तकरीबन 8 GB हर रोज मैं डाउनलोड कर रहा हूं. This means that I am downloading 8 gigabytes every day, more than 8 gigabytes every day. अगर इसकी पैसे इस लिहाज से बढ़ते, जैसे कि घी के रेट बढ़े हैं, जैसे कि चीनी के रेट बढ़े हैं, जैसे कि बिजली के रेट बढ़े हैं, जैसे कि गैस के रेट बढ़े हैं, अगर इस तरह कम्युनिकेशन के भी रेट बढ़ते तो शायद 250 गीगाबाइट के लिए मुझे अपनी पूरी तनख्वाह दे देनी पड़ती. लेकिन मैंने आज अपना बिल पे किया, इट वाज 2810 रुपीज ओनली. दैट वाज माय कंप्लीट टेलीफोन बिल ऑफ द मंथ, जिसमें डेफिनेटली कोई वॉइस कॉल नहीं थी, सिर्फ ये 250 का जो मैंने लिया हुआ है ये, प्लस जो लाजमी तौर पे गवर्नमेंट टैक्सेस लगाती है, इसमें तकरीबन 2000 रुपए जो हैं वो इस सारे प्रोसेस के हैं, और तकरीबन 800 रुपए जो हैं वो टैक्सेस में गवर्नमेंट ने ले लिए. सो दैट इज शोइंग दैट दिस थिंग हैज बिकम चीपर. आई होप यू अंडरस्टैंड एंड यू एग्री विद मी. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, जी बोलें. But this thing is only applicable on PTCL, sir. Like हम सिम्स के ऊपर इंटरनेट यूज करते हैं,
तो वो तो अभी तक एक्सपेंसिव ही है। रेदर देन पैकेजेस अगर हम ऐसे बात करें तो हमें 100 रुपीज़ में एटलीस्ट 1 GB या 1 MB, मतलब इतना हमें वो पड़ता है। नहीं, 1 MB तो नहीं होगा, कम से कम 100 रुपीज में। सर वो अगर आपके पास बैलेंस है तो आप मतलब 1-2 मिनट में आप कितना कुछ यूज कर सकेंगे, तो 100 के 100 एकदम से उड़ जाते हैं। असल में बच्चे आप बहुत ज्यादा, मैंने उस दिन मेरा नेट नहीं था, एंड आई मेरे को 2-3 MB की मैंने फाइल शायद डाउनलोड और अपलोड जो कुछ भी मुझे चाहिए था वो मैंने किया। और साथ ही क्योंकि मैं यूफोन का यूजर हूं, उनका वो आ गया कि जी आपने 7-8 रुपए उन्होंने बताया कि जी आपके हमने डिटेक्ट कर लिए, विच इज नॉट बैड एज कम्पेयर टू फॉरन। वी एज कम्पेयर टू फॉरन, पाकिस्तान में इंटरनेट बहुत सस्ता है। बिल्कुल जी, आई एग्री विद यू रजीउल्ला दुरानी, कि मैं बाहर जब था तो तकरीबन कोई 35 यूरो एवरी मंथ में पे करता था। तो अगर आप 35 यूरो के हिसाब से देखें तो 35 यूरोज बेक्स अगर 160 170 180 में भी है, उस वक्त 120 में था, तो 180 में भी अगर लगा लें तो 6,300 रुपए बनता है। तो इस पाकिस्तान में मैं उसके तकरीबन हाफ में, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है रजीउल्लाह के, क्योंकि टेक्नोलॉजी वही है, खर्चा वही है। जिस चीज में फर्क पड़ता है वो है लेबर। वहां पे लेबर की तनख्वाहें ज्यादा हैं, यहाँ पे लेबर की तनख्वाहें कम हैं। यहाँ पे जो आप इंजीनियर को भी पे करते हैं, वहां पे टेक्नीशियन भी उससे ज्यादा तनख्वाह लेता है, क्योंकि वहां का एक डिफरेंट वो है, तरीकाकार है। तो इस वजह से बाकी टेक्नोलॉजी वाइज देखा जाए तो यही डीएसएल वहां भी इस्तेमाल होता है, यही फोन वहां पे भी इस्तेमाल होता है। कम्युनिकेशन में हम ये नहीं कह सकते कि जी, टू सम एक्सटेंट ये यहाँ तक अब है कि पाकिस्तान में ज्यादातर जो टेक्नोलॉजी है वो चाइनीज इस्तेमाल हो रही है, जबकि यूरोप में या और ममालिक में वो चाइनीज टेक्नोलॉजी की वजह अपनी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, जो कि डेफिनेटली मिसाल तौर पर सीमेंस है, जर्मन टेक्नोलॉजी है, एल्काटेल है फ्रेंच की है, एनईसी है जापान की है। तो ये टेक्नोलॉजीज थोड़ी महंगी हैं लेकिन मोर ड्यूरेबल हैं, मोर बेटर हैं एज कंपेयर टू द चाइनीज वन, लाइक हवावे, लाइक ZTE, blah blah. Cisco is expensive, but Cisco is very good. Ericsson is good. It is again from Sweden. Ericsson is from Sweden, again from Europe. महंगी लेकिन बहुत कम, बहुत बेहतर। Is it clear, gentlemen? Yes, sir. Cisco is from United States, multinational. Ericsson is multinational. Siemens is multinational. So these are the टेक्नोलॉजीज पाकिस्तान में सारी इस्तेमाल हो रही हैं, चाहे एरिक्सन की हैं, चाहे वो एनईसी की हैं, चाहे वो सीमेंस की हैं, चाहे वो सिस्को की हैं, लेकिन साथ साथ कुछ ना कुछ चाइनीज भी फ्लेवर पाकिस्तान में मौजूद है। तो इस वजह से, और दूसरा हमारे यहाँ पे आप किसी को 50,000 पे एक इंजीनियर को भी रखना चाहें तो रख सकते हैं, जबकि बाहर 50,000 इज नॉट ए समथिंग टू, बिकॉज 150 तक को अगर आप 50,000 को अगर आप यूरोप में दे रहे हैं किसी को, तो 50,000 को अगर आप -50,000 को डिवाइड कर दें 180 और 190 के ऊपर, तो 27 यूरो बनते हैं। 27 यूरो पे किसी का एक दिन भी गुजरना मुश्किल है। तो यहाँ पे पूरे मंथ के, सॉरी इट इज 5,000, ये 270 यूरो बन जाएगा। यस, तो 270 यूरो ज्यादा इज नॉट समथिंग बिग इन इन यूरोप। आप वहां पे किसी को कम से कम भी देंगे तो मेरे ख्याल से 600-700 यूरो से कम किसी को, सिर्फ एक ऑर्डिनरी बंदे को, एक पढ़े लिखे बंदे की बात मैं नहीं कर रहा, पढ़ा लिखा बंदा आपसे ज्यादा चार्ज करेगा। इस वजह से वहां पे ये चीजें थोड़ी महंगी हैं, लेकिन उनकी आमदन भी ज्यादा है, हम उस पर नहीं जाना चाहते। एनीहाउ, आप मेरी जो टॉपिक था उस पर मुझे अगर रहने दें, तो मैंने यही बात की कि आपकी टेक्नोलॉजीज फास्ट हो गई हैं, आपकी कंप्यूटिंग जो है वो चीप हो गई है, फास्टर हो गई है। अब जो स्पीड आपको, कल भी शायद मैंने आप लोगों के साथ ये एक चंद स्लाइड शेयर की थी, उस स्लाइड में मैंने ये बात लिखने की कोशिश की कि अब ऑप्टिकल फाइबर के जरिए मिसाल के तौर पे आप बहुत ज्यादा, जस्ट गिव मी अ मिनट जेंटलमैन।
Okay, ladies and gentlemen, sorry for a short interruption. So हम बात कर रहे थे कि अब हमारे पास ऑप्टिकल फाइबर के जरिए फॉर एग्जांपल वी कैन सेंड इन टेराबिट्स. कल तक हमारा जो ऑप्टिकल ये था कोएक्सियल केबल या ये मेगाहर्ट्ज तक ले जा सकते हैं. मिसाल तो द कोएक्सियल केबल वाज कैरिंग अप टू 100 megabit per second. Our twisted pair was capable of sending even today. At the back, it was only 1 megabit per second, or 10 megabit per second, or 100 megabit per second. Now the cable can carry, optical fiber can carry in terabits. So that is again your wireless की, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कल के लेक्चर के दौरान हमने बात की थी कि हमारा जो चलिए यहीं पे लिखते हैं कि अगर हम एग्जांपल लें वाईफाई की, तो वाईफाई स्टार्टेड विद 1 megabit per second, 1 megabit per second, and that was given the 802.11. Then came, gentlemen, 802.11. Then came the newer version with 11 megabit per second, and the name was /B, 802.11b. Then came the 54 megabit per second with the flavor 802.11a or G. They support up to 54 megabit per second. So you can see a big jump. Then N up to 300 megabit per second. N, which I am using or my device is supporting. There is another one which is AC, which is supporting gigabit per second. So gentlemen, this all shows speed increase. 802.11 AC. So what is the increase? Whether we are in the wireless, even if you look at, this is the example of a LAN. Wi-Fi, you know, is a LAN technology. If you talk about a man, sorry, even a mobile, which is a WAN, which is mobile. So in the last, from 80s up to now, we have the first generation of mobile. We have the first generation. We have the second generation, which we even using today. Second generation, which is the GSM. You are using 2.5G, which is GPRS. You are using even today 2.75, which is Edge. Even you are using it today. You are using 3G. The example is UMTS, the 3.5G. For example, you are using HSPA, HSDPA, and you are using 4G, which is LTE. So gentlemen, what is the difference between all of them? High speed. So I think it is a good examples, with good examples, especially probably Shayan ने हमें कहा था कि हमें practically इस चीजों को देखना चाहिए. तो whether Shayan, you are with me here? शायान ही था या कोई और था? I don't remember exactly the name. साथ था सर, शायद साथ था. चलिए, जी सर. सेक्शन बी से था. तो उसने कहा था कि जी प्रैक्टिकली पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप देखें, आप प्रैक्टिकली आपको नजर आ रहा है कि किस तरह टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो रही है, किस तरह मीडिया इंप्रूव हो रहा है, किस तरह टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो रही है. तो दिस इज द लेटेस्ट ट्रेंड, वन ऑफ द लेटेस्ट ट्रेंड. दूसरा लेटेस्ट ट्रेंड हम आपके साथ क्या शेयर करना चाहता हूं कि अब हम कोशिश करते हैं कि हर काम इंटरनेट के जरिए कर लें, घर पे बैठे हुए कर लें. मिसाल के तौर पे आज मुझे सुबह गैस का बिल जमा करवाना था, मुझे टेलीफोन का बिल जमा करवाना था. वन ऑफ द सोल्यूशन ये था कि एज यूजुअल मैं भी जाके बैंक की लाइन में खड़ा हो जाता, जैसे कि चंद साल पहले तक हम करते थे. अब घर से ही बैठ के मैंने ये दोनों बिल पे किए, और अगर मैं आपको इसका मैसेजेस बता नहीं सकता क्योंकि, लेकिन ये मैसेजेस मेरे पास आ गए कि जी आपका बिल जो है वो जमा हो गया. प्रोबेबली या आप, ये आपको शायद नजर तो नहीं आएगा, लेकिन देखें ये आपको
लिखा हुआ मेरे जो मैसेज आ गया कि आपका बिल जो है 2810 रुपीज का वो पे हो गया है। तो घर से बैठे हुए मैंने ये सब कुछ कर दिया। इसी तरह आजकल देखिए क्या लिखा हुआ है, डियर कस्टमर थैंक यू योर पेमेंट ऑफ ₹2800 अगेंस्ट फोन नंबर दिस फॉर February 21 हैज बीन रिसीव्ड। फिर डियर कस्टमर दैट वाज February, नाउ इज द मार्च। तो वो क्या कह रहा है, डियर कस्टमर थैंक यू योर पेमेंट फॉर ₹2810 अगेंस्ट फोन नंबर दिस ऑफ मार्च हैज बीन रिसीव्ड। तो देखिए कितना आसान हो गया है कि मेरे लिए ये बिल पे करना और ये गन से। इस तरह आजकल आप बाइंग भी है, तो ज्यादातर आप बाइंग और सेलिंग अब दोनों ही, फॉर एग्जांपल यू गो टू द OLX, यू प्लेस योर आइटम एंड समबडी, आज तो वो फिर भी आप जाके उससे वो चीज उठाते हैं या उसको पेमेंट करते हैं। मे भी ऐसा होगा कल के जी वो आपको, बल्कि अभी भी लोग आपको इजी पैसा करते हैं और आप उनको चीजें डिलीवर कर देते हैं, सिंपल। So it is that your businesses, your eBay, Amazon, and others similar, JDot, and many more on the businesses, they are on the network. Alibaba, very right, Muhammad Abdullah. इसी तरह network have become more intelligent. Network have become more intelligent because now they can provide different quality of service. They can provide more different quality of सर्विस। फॉर एग्जाम्पल अगर आप उनके बड़े कस्टमर हैं तो दे में प्रोवाइड यू, जैसे कि मार्केट में वैसा होता है ना कि बड़ा कस्टमर आता है तो उसको एक खास इज्जत दी जाती है। तो इसी तरह अगर आपका भी कोई बड़ा कस्टमर है, बड़ा इंटरप्राइज है, तो आप उसके साथ डिफरेंट वो रखते हैं, बिहेवियर रखते हैं। इसी तरह आप उसको डिफरेंट क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं कि जी वो खफा ना हो आपसे। तो इस तरह अगर उसकी वॉइस ट्रैफिक है, उसकी वीडियो ट्रैफिक है, आप उसके बिजनेस की वो है प्रीमियम मेंबरशिप आप उसको दे देते हैं, वेरी राइट। तो दिस प्रीमियम मेंबरशिप में आई कॉल एज द क्वालिटी ऑफ सर्विस, कि आप उसको ऐसी क्वालिटी ऑफर करते हैं जिससे वो उसका बिजनेस इफेक्ट ना हो, ठीक है। इसी तरह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज द मोबिलिटी। डेफिनेटली वायर इज मच मच बेटर देन द मोबाइल, बट मोबाइल में जो सबसे बड़ी क्वालिटी है वो है एवरीवेयर अवेलेबिलिटी। Whether you are at home, whether you are at office, whether you are on road, whether you are in a village, whether you are in a other portability, very right Zain Fayaz, ये मैं कह रहा हूं कि आप उसको अपने साथ घुमा सकते हैं, जो कि वायर्ड बहुत अच्छा है। जैसे अभी शायद आप लोगों में से किसी ने क्वेश्चन किया था या प्रीवियस क्लास में से किसी ने क्वेश्चन किया था कि जी मेरे घर पे ऑप्टिकल फाइबर आ गया हुआ है। हैदराबाद में कोई रहने वाला हमारा सेक्शन 1 की स्टूडेंट थी, मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा था कि आपके घर तक ऑप्टिकल फाइबर, तो ऑप्टिकल फाइबर की स्पीड बहुत ज्यादा, क्वालिटी बहुत अच्छी, वेरी नाइस एवरीथिंग, लेकिन आप लेके उसको साथ नहीं फिर सकते। मोबिलिटी का फायदा यह है कि आप उसको लेकर साथ घूम सकते हैं। तो दीज आर द न्यूअर ट्रेंड्स। इसमें भी मैंने यही बताने की कोशिश की कि अगर आप इथरनेट को देखें, विच इज जैसे एक टेक्नोलॉजी आपकी लैन में इस वक्त इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है वाईफाई, जिसको मैंने कुछ देर पहले एक्सप्लेन किया, ये आपके सामने एक्सप्लेन किया। इसी तरह जेंटलमैन अगर मैं आपके साथ शेयर करूं इसका दोस्त जो कि वायर में आपको साथ देता है, वायर्ड नेटवर्क्स में लैन टेक्नोलॉजी है, वाइड लैन टेक्नोलॉजी है, तो उसको हम कह सकते हैं ईथरनेट। ईथरनेट, तो ईथरनेट जो है दैट इज ऑल्सो सपोर्टिंग ईथरनेट। यस मोहम्मद अब्दुल्ला, ईथरनेट इनिशियली केम विद द स्पीड ऑफ 1 megabit per second, 1 megabit per second, 1 megabit per second, but now जी सर ये वाईफाई में आपने मतलब 11B और 54AG, ये BAGNAC ये क्या चीज है सर? जी बिल्कुल ठीक है, आपने क्वेश्चन किया, मैं इसका जवाब आपको दे दूं। जेंटलमैन, इसका मतलब यह है कि IEEE एक दुनिया में स्टैंडर्डाइजेशन बॉडी है। स्टैंडर्डाइजेशन, स्पेलिंग में कुछ इशू हो तो उसको इग्नोर किया करें। स्टैंडर्डाइजेशन बॉडी है जो कि मुख्तलिफ चीजों के लिए स्टैंडर्ड्स बनाती है, ठीक है, वेरी नाइस जी। अब इसने मिसाल के तौर पे अगर हम एग्जांपल लें ईथरनेट की, तो इसने ईथरनेट के लिए भी स्टैंडर्ड बनाए जिसका नाम है 802.802.3, 802.3, ये है ईथरनेट के स्टैंडर्ड्स।
ओके, IEEE 802.3 ये किसका स्टैंडर्ड है? ईथरनेट का। इसी तरह IEEE 802.5 ये है टोकन रिंग का स्टैंडर्ड। ये भी एक लैन टेक्नोलॉजी है, टोकन रिंग। इसी तरह जेंटलमैन IEEE 802.11 802.11 ये टेक्नोलॉजी है वाईफाई का स्टैंडर्ड की, वाईफाई के स्टैंडर्ड की। इसी तरह 802.15 IEEE 802.15 आपके ब्लूटूथ की टेक्नोलॉजी है, का स्टैंडर्ड है, ब्लूटूथ का स्टैंडर्ड है, ब्लूटूथ का स्टैंडर्ड है। इसी तरह IEEE 802.16 ये आपका वाईफाई का वाईमैक्स का स्टैंडर्ड है। तो जेंटलमैन इससे पता चला कि ये मुख्तलिफ स्टैंडर्ड किसने दिए हमें? IEEE ने दिए। अब इसमें आपका क्वेश्चन इस जगह पे लाई करता है कि ये आप किस तरह साथ कभी ए लगा देते हैं, कभी जी लगा देते हैं, कभी एन लगा देते हैं। तो जेंटलमैन ये टेक्नोलॉजी जो है वो वक्त के साथ साथ इंप्रूव होती जाती है। तो IEEE ने अपने स्टैंडर्ड में इंप्रूवमेंट्स की। मिसाल के तौर पे IEEE 802.11 से ये पहले मूव किया इसने IEEE 802.11 बी की तरफ। तो आपका डेटा रेट 1 मेगाबिट पर सेकंड से बी स्टैंडर्ड में 11 मेगाबिट पर सेकंड पे पहुंच गया। हम इससे भी खुश नहीं थे क्योंकि इथरनेट जो था इसके मुकाबले में उस वक्त 100 मेगाबिट पर सेकंड दे रहा था, तो इसका मतलब कॉम्पिटिटिव उसके साथ नहीं था। तो इन्होंने क्या किया, अपने स्टैंडर्ड को IEEE के स्टैंडर्ड को और इंप्रूव किया और इसको जी और ए के ऊपर ले गए, जी या ए के ऊपर ले गए। बेहतर था डेफिनेटली ए और जी, क्योंकि ये 54 मेगाबिट पर सेकंड को सपोर्ट करता था, लेकिन फिर भी 100 मेगाबिट पर सेकंड था उस वक्त। इन्होंने अपने आप को और इंप्रूव किया और एक स्टैंडर्ड अपना नया लेकर आए जिसका नाम था IEEE 802.11n, जो कि 100 और बाद में 300 मेगाबिट पर सेकंड तक चला गया। लेकिन साथ ही इथरनेट के मतलब नहीं कि वो रुका रहा, जैसे मैंने अभी आपके सामने एक्सप्लेन किया कि इथरनेट भी उसका जो डेटा रेट है वो भी इंक्रीज होता रहा। किस तरह? वो भी 1 से 10 पे गए, 10 से 100 पे गए, 100 से 1 गीग पे गए, 1 गीग से 10 गीग पे गए, 10 गीग से 40 गीग पे गए, और 40 गीग से दे आर ट्राइंग टू रीच टू द 100 गीग एंड सो ऑन। तो दे आर द डिफरेंट टेक्नोलॉजीज। जी, क्या मैं आपके सवाल का जवाब दे सका? थैंक यू सर। ओके ओके, तो यहाँ पे जो चीज मैं आपके साथ शेयर कर रहा था इसी क्वेश्चन के साथ इसको हम लिंक कर देते हैं। इसी तरह अगर आप 802.3 को देखें तो जेंटलमैन 802.3 के साथ भी मुख्तलिफ फ्लेवर्स ऐड होते गए। अब इसमें एक जो फ्लेवर था वो 1 मेगाबिट पर सेकंड का था, उससे अगला जो था वो 110 मेगाबिट पर सेकंड का था, उससे अगला जो था वो 100 मेगाबिट पर सेकंड का था, उससे अगला जो है वो 1 गीग यानी कि 1000 मैक है, फिर 1000 की बजाय 10,000 पर चला गया, यानी 10 गीग पे चला गया। सो इस तरह 10 गीग से 40 गीग की तरफ उसका सफर बढ़ा। तो दिस इज अगेन शोइंग यू 40 गीग, then 100 gig. So this is again a process which is continuing. This is about the Ethernet. This is about the Ethernet. तो यही बात इस ग्राफ में भी बताई जा रही है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम आप देख सकते हैं कि these are not the horizontal curves. So this is showing that with the passage of time, what is happening? The speed of the network is increasing. ठीक है, existing data Ethernet data rates are on the rise. Good. उसके बाद हम जिस टॉपिक को एक्सप्लेन करना चाहते हैं दैट इज अबाउट द चेंजेस इन नेटवर्किंग टेक्नोलॉजीज। तो मैं
पिछले काफी टाइम से यही बात आपके साथ एक्सप्लेन कर रहा हूं कि हमारे हाई स्पीड लैंड्स आ गए हैं। लाजमी तौर पे ट्रैफिक कहाँ पे जनरेट होती है? मोस्टली आपके लैंड्स में होती है। अब जैसे देखें, अगर मेरी ट्रैफिक इस वक्त जनरेट हो रही है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको ये करके अगर दिखाऊं, कल भी शायद मैंने आपको करके दिखाया, ऑल्ट कंट्रोल डेल करता हूं, टास्क मैनेजर पे जाके आपको दिखाता हूं कि जी देखें मेरा वाईफाई जो है माशाल्लाह वो कितनी ट्रैफिक ले जा रहा है, ठीक है ना। सो इट इज कैरिंग द ट्रैफिक, इट इज रिसीविंग द ट्रैफिक। तो ये ट्रैफिक जो है दैट इज बिकॉज कल मतलब जैसे मैंने भी आपको एग्जांपल दी कि कुछ साल पहले तक द मैक्सिमम स्पीड पॉसिबल वाज नॉट मोर देन 10 किलोबिट पर सेकेंड, बिकॉज जो मॉडेम में इस्तेमाल करता था वो मैक्सिमम 56 के होता था, लेकिन बिकॉज ऑफ द लाइन के लॉसेस की वजह से और नॉइज की वजह से इट वाज नेवर पॉसिबल टू हैव इट स्पीड मोर देन 10 किलोबिट पर सेकेंड। लेकिन आज मेरा मशीन जो है वो, और मैंने अभी बताया कि मैंने 2 फाइल करके और चेक किया कि मैं कितना रिसीव कर रहा हूं, एंड आई फाउंड दैट आई एम रिसीविंग एट 8 मेगाबिट पर सेकेंड, जो कि मेरी सब्सक्रिप्शन थी। इससे ज्यादा मतलब डेफिनेटली मैं एक्सपेक्ट नहीं करता। तो इससे हमें पता चलता है। इस तरह मैंने आपको कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज की एग्जांपल दी अभी, लेडीज एंड जेंटलमैन, मैंने आपको एग्जांपल दी अभी ये इथरनेट, ये भी लैन टेक्नोलॉजी है। मैंने आपको वाईफाई की एग्जांपल दी, ये भी लैन टेक्नोलॉजी है। तो लैंस में इसका मतलब ज्यादा ट्रैफिक जनरेट हो रही है। और लैन की ट्रैफिक कहाँ जाती है? लाजमी तौर पर वैन में जाती है, वायर्ड एरिया नेटवर्क में जाती है। देखें ना, मेरी ट्रैफिक इस वक्त मैं जनरेट कर रहा हूं और ये ट्रैफिक जैन की तरफ जा रही है, उजैफा की तरफ जा रही है, अब्दुल्ला की तरफ जा रही है, ये आप लोगों की तरफ जा रही है। तो दिस इज मे बी, इट मे बी थ्रू ए वायर्ड नेटवर्क और इट मे बी थ्रू ए वायरलेस। अगर मिसाल के तौर पे इस वक्त मेरा ये ठीक ना होता डीएसएल, तो हो सकता है मैं इसके ऊपर होता, मैं 3G या 3.5G या 4G का नेटवर्क इस्तेमाल करके डेटा को आपकी तरफ भेज रहा होता। तो कहने का मकसद ये है जेंटलमैन जी, एनी क्वेश्चन? सर ये इथरनेट और वायरलेस नेटवर्क में मतलब ये जो भी वायरलेस नेटवर्क होता है उसके बैक एंड में हमारे पास कोई ना कोई वायर यूज हुआ होता है ना। Sure. तो मतलब ये कि वो भी इथरनेट ही मतलब कह सकते हैं ना इस चीज को? कह नहीं सकते Backend है, में इथरनेट ही होता है, या फाइबर यूज होता है या कोई दूसरा केबल यूज होता है? बिल्कुल जी। तो मतलब ये टेक्नोलॉजी इनविजिबल इथरनेट डिफरेंस ही क्या होती हुआ है इथरनेट और उसके बीच में? जी। आखिरी बात नहीं सुनाई दी, आखिरी बात मुझे आपकी सुनाई दी, रिपीट कर दें। सर ये डिफरेंस का नहीं पता चल रहा है जी इथरनेट और उसमें, या इनको किस तरह क्लासिफाई कर सके कि ये इथरनेट नेटवर्क है और ये फिर उसके बाद वो दूसरा? ठीक, वेरी नाइस तो जो जी, आई एक्सप्लेन। देखिए मिसाल के तौर पे इस वक्त मेरा ये लैपटॉप है, ये मेरा लैपटॉप है, ये पड़ा हुआ है जी, ये मेरा लैपटॉप है जो कि लैपटॉप है जो कि आपको भी पता है कि इसकी तारें नहीं है। इसका मतलब है कि इस वक्त ये जो टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है दैट इज वाईफाई। ये जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहा है वो वाईफाई है, इसमें तो कोई शक व शुबा नहीं है। क्यों शक व शुबा नहीं है? क्योंकि आपने यहां पे अभी देखा कि आई एम यूजिंग दी ओके, यहां पे आपने देखा कि आई एम यूजिंग द वाईफाई, तो जिसमें मैं सेंड भी कर रहा हूं, रिसीव भी कर रहा हूं, नो ऑप्शन, नो डिफिकल्टी जी। डेफिनेटली इसके बाद जेंटलमैन मेरा ये कंप्यूटर कनेक्टेड है, मेरा ये कंप्यूटर कनेक्टेड है एक एक्सेस पॉइंट के साथ, एक अदद एक्सेस पॉइंट के साथ, जिसको मैं एपी लिख देता हूं, एपी के साथ कनेक्टेड है। और अगर मैं आपको दिखा सकूं, जो कि मैं दिखा रहा हूं स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है, आपको एक एक्सेस पॉइंट नजर आ रहा है, ये एक्सेस पॉइंट है जिसके ये एंटेनाज हैं। तो इसका मतलब ये कि ये एक्सेस पॉइंट लगा हुआ है, मेरा लैपटॉप के भी एंटेनाज हैं जो कि डेफिनेटली उसके वाईफाई कार्ड के अंदर एम्बेडेड हैं। तो उसके एंटेना और इसका एंटेना एक दूसरे से बात कर रहा है, इसका मतलब ये वाईफाई टेक्नोलॉजी है। अब अगर आप फर्दर देखना चाहें तो ये एक्सेस पॉइंट के बैकएंड के ऊपर आपको नजर आ रहा होगा, मुझे आपने अपना नाम नहीं बताया लेकिन मैं कहूंगा जेंटलमैन आप देख सकते हैं इसके पीछे ये आपको कुछ पोर्ट्स नजर आ रही हैं। ये पोर्ट्स इस्तेमाल करती हैं इस केबल को, जो कि आपको ये येलो कलर की नजर आ रही है, ये यूटीपी केबल है। यानी ये आप कह सकते हैं ये अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल है, आप कह सकते हैं कि ये ईथरनेट केबल है।
अब ये इथरनेट केबल यहां पे लग गई, इसके देखें इसके एक पोर्ट के अंदर मैंने ये लगा दी, और इसकी दूसरी पोर्ट मैंने लगा दी किसके साथ, फॉर एग्जांपल डीएसएल रूटर के साथ। तो लाजमी तौर पे अब ये किस नेटवर्क पे चला गया, वायर्ड नेटवर्क पे चला गया। इसका मतलब ये है कि मेरा लैपटॉप से लेकर मेरे इस एक्सेस पॉइंट तक सिर्फ ये वाला रास्ता जो है ये वायरलेस है, इसके आगे जो डेटा जा रहा है इट इज ऑल वायर्ड। इसी तरह जब आप अपनी मोबाइल पे बात करते हैं, तो इट इज ओनली मोबाइल फ्रॉम यूर, इट डजंट हैव एनी, मैं ये नहीं कहता कि it doesn't have any medium, definitely has a medium which is air. So and through the air it is connected, and through the air it is connected to the tower where a big antenna is there, and this antenna is connected to the BTS, and this BTS is mostly उसी एंटेना के करीब नीचे पड़ा हुआ है, and then उसके आगे अगर आप देखें तो वायर्स हैं। तो वायरलेस सर ये स्लाइड नजर नहीं आ रही, स्लाइड नजर नहीं आ रही जी ये जेम बोर्ड नजर आ रहे हैं सर। तो जैम बोर्ड ही बता रहा हूं मैं, जिसके ऊपर लैपटॉप लिखा हुआ है, एक्सेस पॉइंट लिखा हुआ है। अच्छा, इसमें पोर्ट का तो कोई नहीं है सर, आप पोर्ट भी नहीं, एक्सप्लेन कर रहे थे। जी वो तो मैंने आपको रियल उसमें ले गया ना, रियल में जाके दिखाया कि जी इसके इस लैपटॉप के अंदर एक अदद एंटेना लगा हुआ है, इसके अंदर एक अदद एंटेना, एक या एक से ज्यादा, एक होता है माइमो, मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट एंटेनास होते हैं, लेकिन हम इज्यूम करते हैं कि चले जी एक ही एंटेना है। एक्सेस पॉइंट के अंदर भी एक ही एंटेना है, इस एंटेना के जरिए ये दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं। फिर हमने बताया कि इसके अंदर एक्सेस पॉइंट के अंदर मल्टीपल पोर्ट्स लगी हुई हैं, और ये पोर्ट्स के जरिए, वायर्स के जरिए किसी डिवाइस के साथ कनेक्टेड है, जो कि एक ईथरनेट स्विच भी हो सकता है, जो कि एक डीएसएल रूटर भी हो सकता है। ये डीएसएल रूटर आपके सामने आ गया, और इस डीएसएल रूटर को हमने पीटीसीएल वायर इन टेलीफोन के जरिए सेंट्रल ऑफिस से कनेक्ट किया हुआ है, पीटीसीएल ऑफिस से कनेक्ट किया हुआ है। ये पीटीसीएल ऑफिस आ गया आपके सामने जेंटलमैन, पीटीसीएल का ऑफिस या नयाटेल का ऑफिस या स्ट्रॉम फाइबर का ऑफिस। तो इसके आगे आप जो जहां भी पीटीसीएल का, फिर पूरी दुनिया क्लाउड के साथ ये कनेक्टेड है। ये अगर आपका क्लाउड है, पीटीसीएल इज पार्ट ऑफ दिस क्लाउड, ये आपका क्लाउड है जिसके साथ पूरी दुनिया कनेक्टेड है, पीटीसीएल भी उसके साथ कनेक्टेड है। यूं सारी दुनिया एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो गई। मेरा लैपटॉप यहां पड़ा हुआ है, आपका लैपटॉप कहीं यहां पड़ा हुआ है, स्मार्टफोन है, व्हाटएवर, इट इज आल्सो कनेक्टेड थ्रू सिमिलर नेटवर्क और मे बी थ्रू ए मोबाइल नेटवर्क। आप एक टावर के साथ कनेक्टेड हैं, टावर के साथ कनेक्टेड है, टावर के नीचे बीटीएस पड़ा हुआ है, बीटीएस बीएससी के साथ कनेक्टेड है, बीएससी जो है एमएससी के साथ कनेक्टेड है, एमएससी राउटर एक अपने डेटा नेटवर्क से कनेक्टेड है, विच इज अगेन कनेक्टेड टू दिस cloud, which is again connected to this cloud, and because of this we can communicate with one another. D, now it makes sense? Yes sir, thank you. Okay. जी सर, हो गया सर, थैंक यू। वेरी नाइस। तो यही बात मैंने यहां पे क्लियर करने की कोशिश की कि द स्पीड एंड कंप्यूटिंग पावर ऑफ पीसीस भी इंक्रीज हो रही है, और हमारी टेक्नोलॉजी जो लैंड टेक्नोलॉजीज हैं वो भी इंप्रूव हो रही हैं, जिसकी वजह से आवर लैंड्स आर प्रोड्यूसिंग मोर एंड मोर बिट्स पर सेकेंड, and our computers are capable of computing them, processing them at a faster rate, and because of this everything we are getting at a faster pace. नंबर 2, हमने एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि देखिए यही दो बातें वो कर रहा है कि आपके कंप्यूटर तेज हो गए हैं, आपके लैंस जो हैं वो ज्यादा हाई स्पीड के ऊपर उसको कंप्यूट भी करते हैं, प्रोसेस भी करते हैं, जनरेट भी करते हैं, रिसीव भी करते हैं। तो बिकॉज ऑफ दीज 2 रीजंस, दी 2 सिग्निफिकेंट ट्रेंड जो हैं जिन्होंने रिक्वायरमेंट ऑफ द लैंड को तब्दील किया, दैट इज द ग्रोथ एंड स्पीड ऑफ द कंप्यूटिंग पावर ऑफ योर कंप्यूटर्स and the LAN technologies. And I explained to you many LAN technologies. Maybe I explained to you the Ethernet, I explained to you the token ring, I explained to you the Wi-Fi. The best, I may say, or the more recognized LAN technologies. Then I talked about, gentlemen, about the corporate wide area network needs. What it means? It means corporate means entrepreneurs. Corporate means big businesses. तो उनकी रिक्वायरमेंट बदल गई है। पहले जो बड़े बिजनेसेस होते थे, मिसाल तो पे चले हम, आपकी यूनिवर्सिटी भी एक बिजनेस है, एजुकेशन भी एक बिजनेस है, तो जेंटलमैन सारा का सारा हिसाब किताब जो होता था, आपके रिजल्ट्स ब्ला ब्ला, वो किसी रजिस्टर्स में नोट किए जाते थे।
कोई रिजल्ट भेजे भी जाते थे तो हार्ड कॉपी भेजी जाती थी। हार्ड कॉपी से मतलब लिखा हुआ चीजें एक दूसरे को, अगर किसी को आपने लेटर भी लिखना होता था तो आप खत लिखते थे। आप अगर किसी को ऑर्डर भी प्लेस करना होता है, बिजनेस है ना, ऑर्डर प्लेस किए जाते हैं और ऑर्डर्स पूरे किए जाते हैं, तो आपको खत आता था, आपको टेलीग्राम आता था कि जी कराची में फलाना डीलर जो है इतनी चीजें इसको भिजवा दें, और वो आपको फिर पैसे भी उसी तरह से भेजता था, बैंक के थ्रू या चेक भेजता था, इस तरह का खेल होता था। नाउ द थिंग्स हैव कंप्लीटली चेंज। अब वो बैठे बैठे एक घूमते रात को सोते हुए इधर सोने से 10 मिनट पहले एक अदद व्हाट्सएप करता है, एक अदद आपको ईमेल भेजता है, और बस आपको सुबह आप देखते हैं तो आपके पास 10 ऑर्डर पड़े होते हैं एंड you are done with this. So what is the newer trend in the networking? That the more reliance on personal computers. अब आप इवन पहले जैसे मैंने बताया कि लेटर के जरिए आप अगले को ऑर्डर भेजते थे कि जी इतना माल मुझे भिजवा दो, या ये इतना माल आपको मैं भेज रहा हूं। फिर क्या हुआ, फोन किया जाता था, अस्सलाम वालेकुम, हाँ जी मुझे फलानी चीज चाहिए। अब उसका जमाना भी गया। अब हम कंप्यूटर के जरिए बैठ के ईमेल कर रहे होते हैं, हम कंप्यूटर के जरिए बैठ के व्हाट्सएप कर रहे होते हैं। हम देखे ना, अभी भी मैं आप लोगों को मैं ये भिजवाता हूँ लिंक, तो मैं व्हाट्सएप पे भेज देता हूँ ताकि जैदुल्ला आप लोगों को आगे फॉरवर्ड कर दे, ताकि आप लोग लाइन पे आ जाएं। इस तरह हम किसी से मीटिंग करनी होती है तो ये अब जरूरत नहीं रही कि कराची से एक बंदा उठ कर जहाज में बैठ के या ट्रेन में बैठ के आए और एक बात हो। easily it can be done through the telegram, through the signal, to the Google Meet, to the WebEx and many more. तो विच मीन कंप्यूटर्स का बड़ा बीच में अमल दखल आ गया है, ठीक है ना। अब आप क्या करते हैं, आप टेली कंप्यूटिंग पे आ गए हैं, दूर से, मतलब अब आपको करीब आने की जरूरत नहीं है एक दूसरे के साथ। इंटरनेट आपके सामने आ गया है, इंट्रानेट आपके सामने आ गया, एक्स्ट्रानेट आपके सामने आ गया है। सो बिकॉज ऑफ दीज बहुत ज्यादा डेटा जनरेट हो रहा है, इंटेंसिव, मोर डेटा इंटेंसिव एप्लीकेशंस हैं। अब मिसाल के तौर पे कल आप जो ईमेल इस्तेमाल करते थे, दैट वाज लेट इट बी 90s, आप ईमेल इस्तेमाल करते थे तो ईमेल का कितना साइज होगा, नॉट मोर देन अ फ्यू किलोबाइट्स। लेकिन आज अगर इसको हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो वी विल फाइंड दैट इट इज अराउंड 200 मेगा, कहां 10 किलो और कहां 200 मेगा। तो दिस इज, आज की एप्लीकेशन जो है वो मोर डेटा इंटेंसिव हो गई है, और जो ट्रैफिक है वो बहुत ज्यादा राइज कर गया है, बहुत ज्यादा ट्रैफिक जनरेट हो रही है। इसके अलावा जो ट्रैफिक का पैटर्न है वो हाईली अनप्रेडिक्टेबल है। क्यों मैं इसको अनप्रेडिक्टेबल कहता हूं लेडीज एंड जेंटलमैन, इसलिए इसको अनप्रेडिक्टेबल कहता हूं जैसे कि आपको नजर भी आ रहा है, कभी कम कभी ज्यादा, फिक्स नहीं है, कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं है। और अभी मैं आपके साथ लेट करें कि 2 बजे क्लास खत्म कर दूं या अभी क्लास खत्म कर दूं, ये नंबर कहां पे चला जाएगा, 0 पे चला जाएगा। इसका मतलब है कि इसी तरह बिजनेस में भी यही होता है, कभी ट्रैफिक सुबह के टाइम पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक होगी, हो सकता है उसके बाद नमाज की ब्रेक हो जाए, हो सकता है उसके बाद रमजान है बस छुट्टी हो जाए, या इवनिंग शिफ्ट स्टार्ट हो जाए। तो डेफिनेटली इट शोज यू जेंटलमैन दैट द ट्रैफिक इज हाईली अनप्रेडिक्टेबल। तो बिकॉज ऑफ दिस, दीज आर दी हमारे लैन की नीड्स हैं, हमारी नेटवर्क की नीड्स हैं कि इस तरह की ट्रैफिक को हमें दे रहे हैं। एंड बीइंग एन इंजीनियर, जेंटलमैन, लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज योर जॉब कि आप किस तरह इन की ट्रैफिक को इनकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते हैं। तो दिस इज द कॉर्पोरेट वाइड एरिया नेटवर्क नीड्स। Then is everything has become digital, everything has shifted to the digital electronics. कल जितने भी हमारे डिवाइसेस थे जो कि एनालॉग पे थे, नाउ दे आर ऑन डिजिटल। मिसाल के तौर पे आपके घर में कल एक बहुत बड़ा टीवी पड़ा होता था, ऑल एनालॉग, आज आपके घर में एक स्लिम सी एलईडी लगी हुई है विच इज ऑल डिजिटल। इसी तरह कल आपके जो डेटा आप सेव करते थे वो आप सेव करते थे, ज्यादा होता था तो आप मैग्नेटिक टेप्स के ऊपर। जी, एनी क्वेश्चन? ओके, सीम्स नो। सो आप अपने डेटा को किस पे स्टोर कर रहे होते थे? आप मैग्नेटिक टेप्स के ऊपर स्टोर करते थे। जैसे अगर आज भी आपको याद हो, कुछ साल पहले तक आप वीसीआर इस्तेमाल करते थे। वीसीआर आप लोगों ने इस्तेमाल किया हुआ है? आप लोगों ने हैं तो आप जनरेशन। यस सर जी बिल्कुल। तो वीसीआर की का अगर आप कैसेट देखें तो उसके अंदर क्या टेप थी, वहां उसके अंदर एक मैग्नेटिक टेप थी। उस मैग्नेटिक टेप पे सारा चीज स्टोर की जाती थी, चाहे वो ऑडियोज हो, वीडियोज हो, जो कुछ भी हो। तो कल का वो जमाना था। आज आप किस पे स्टोर करते हैं? डीवीडीज पे करते हैं, सीडीज पे करते हैं आप। तो कहने का मकसद ये है कि द थिंग्स हैव, बिकॉज ऑफ दिस ऑल,
डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, जैसे अभी आपने एग्जांपल दी क्लाउड की, नेटफ्लिक्स इज आल्सो पार्ट ऑफ द क्लाउड। तो कहने का मकसद ये है कि द लॉट ऑफ आप ऑन द रन होते हैं, आप मूव कर रहे होते हैं और आप कहीं से वीडियो को कैप्चर करते हैं और फेसबुक पे डाल देते हैं, यूट्यूब पे डाल देते हैं। तो दिस हैज इंक्रीज अ लॉट ऑफ ट्रैफिक ऑन आवर नेटवर्क। फिर एक कन्वर्जेंस की बात, जैसे कि मैंने आपसे पहले भी इसका डिस्कस किया है आपके साथ कि इससे कुछ चंद साल पहले तक, मिसाल के तौर पे जेंटलमैन, आपके पास जो टेक्नोलॉजीज थी, मिसाल के तौर पे घरों में क्या क्या होता था या ऑफिस में क्या होता था, पीएसटीएन होता था, पीएसटीएन पब्लिक स्विचिंग टेलीफोन नेटवर्क, जिसको आप पॉट्स भी कहते हैं, प्लेन ओल्ड टेलीफोन सिस्टम, जो टेलीफोन आज भी आपके घर पे मौजूद है, हो सकता है कई लोगों के घर पे है। सो जिनके पास डीएसएल है डेफिनेटली उनके घर फोन भी है। तो ये टेक्नोलॉजी बेसिकली जिस पर्पस के लिए बनी है जेंटलमैन, वो वॉइस कम्युनिकेशन को हैंडल करने के लिए बनी है, ये डेटा को के लिए कभी भी नहीं बनी। इसी तरह आपका आज भी अगर आप केबल टीवी को देखें तो केबल टी का जो नेटवर्क है, केबल नेटवर्क, दैट हैज बीन डिजाइन्ड फॉर वीडियो, that has been designed for video। इसी तरह एक वो था टेक्नोलॉजी थी which was called pager, which was designed for text messages, only one directional text messages only। इवन आपका जो इंटरनेट जिस पर्पस के लिए बना था that was for data, लेकिन आज आपका इंटरनेट is carrying multimedia traffic, multimedia traffic। By multimedia means it carries data, it carries your voice, it carries audio, it carries video and everything। So there, which means there is a merger of different टेक्नोलॉजीज। जो ऊपर की जितनी टेक्नोलॉजीज हैं, चाहे वो पीएसटीएन है, चाहे वो केबल टीवी है, चाहे वो पेजर है, चाहे पुराना इंटरनेट है, वो सारी के सारी ट्रैफिक, फैक्स इज आल्सो देयर, यस जियादुल्ला, दैट इज पार्ट ऑफ द फोन, जिसको आप डिजिटाइज करके और डेटा को उस फोन लाइन के ऊपर भेजते थे, तो दैट वाज द फैक्स मशीन, एंड थ्रू दिस देयर वाज अ कम्युनिकेशन। सो बट ऑल ऑफ दिस नाउ यू कैन डू थ्रू योर दिस इंटरनेट। सो कहने का मकसद, एंड दिस इज कॉल्ड दी, this merger is called the convergence, that here you have converged all the technologies, all the data types on a single network, which is an all IP network। Foundation is packet based transmission using the internet protocol। तो इन सब की को आप किस में कन्वर्ट करते हैं, बिट्स में, बिट्स को आप पैकेट्स में बंद करते हैं, which we will talk about later, and then you send in on an IP network। ठीक है। After this, I think I should stop here today। ऐसे में नमाज का टाइम है। From here, we will be ज़ियाद, या जो जिसको भी मैंने ये ड्यूटी दी हुई है कि आप अपने पास नोट डाउन कर लें कि हम कल इंशाल्लाह स्लाइड नंबर 22 से स्टार्ट करेंगे। But if you have any question, I will be happy to respond। सर ये Li-Fi टेक्नोलॉजी क्या है सर? Yes, gentlemen, Li-Fi is a newer technology जिसमें आप लाइट के ऊपर, विजिबल लाइट के एरिया में आप कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। तो क्योंकि लाइट का, विजिबल लाइट की फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है, तो उसके अपने इश्यूज हैं जिनको हम किसी वक्त उस पर बात की जा सकती है। Li-Fi जिसे कहते हैं, जिसको लाइट को, विजिबल लाइट के पोर्शन, मिसाल के तौर पे आप कहेंगे कि जी अभी भी तो ऑप्टिकल फाइबर में लाइट इस्तेमाल होती है, तो यस, ऑप्टिकल फाइबर में भी लाइट इस्तेमाल होती है, लेकिन कौन सी लाइट इस्तेमाल होती है? विजिबल लाइट नहीं इस्तेमाल होती, बल्कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इसका कुछ पार्ट इसमें इस्तेमाल होता है। लेकिन अगर आप विजिबल लाइट को इस्तेमाल करना चाहें फॉर कम्युनिकेशन, तो क्योंकि इसकी फ्रिक्वेंसी बहुत हाई है विजिबल लाइट की, और इसका मतलब है कि ये बहुत ज्यादा डेटा रेट कैरी कर सकती है, तो दिस इज अ न्यूअर, to some extent newer area which people are exploring, which the researchers are exploring, कि इसको भी हम कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल करें। जी, any other question? सर ये क्या लैन है कि वैन है सर? ये वैन के लिए इस्तेमाल होगी, लेकिन डिपेंड करता है कि इसको कहाँ पे, अगर देखा जाए तो स्पीड जब ज्यादा होती है तो लॉसेस ज्यादा होते हैं, तो उस केस में इट मे बी यूज फॉर दी
फॉर स्मॉल डिस्टेंसेस, लेकिन इसको लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, तो इट कैन बी यूज फॉर बोथ। ओके सर, सर पाकिस्तान ने कोई सैटेलाइट वैसे लॉन्च किया है, ये मतलब कम्युनिकेशन सैटेलाइट? हमारे जो कम्युनिकेशन का सैटेलाइट्स हैं बिल्कुल हैं, हमारे पास जियो सैटेलाइट के ऊपर भी बैंडविड्थ अवेलेबल है, हम बात करेंगे सैटेलाइट कम्युनिकेशन में इसकी। और हमारे अपने एग्जैक्टली स्पार्को इस पे काम तो कर रहा था कि जिसमें इनका अपना, हमें खाली चाइना से हमने उसको लॉन्च किया हुआ है, लेकिन शायद वो इस्तेमाल मिलिट्री पर्पस के लिए होता है, लेकिन डेफिनेटली हम पाकिस्तान का भी अपना सैटेलाइट में यानी कि स्पेस में मौजूद है। Thank you. जी बोलें। सर ये पीटीसीएल और दूसरे भी जो चीज़ें हैं, आपने कहा कि नेटवर्क प्रोवाइडर जो है, ये फिर आपने कहा कि क्लाउड के साथ कनेक्ट थे। क्लाउड के साथ कनेक्ट होने का क्या मकसद है सर? ये आगे जाके क्लाउड का मतलब ये है, कहने का मकसद अगर मैं पूरी दुनिया का बनाना चाहूं तो मैं नहीं बना सकता। मिसाल तो पीटीसीएल जो है वो अवान टेलीकॉम के साथ भी कनेक्टेड है। पीटीसीएल जो है वो मुल्क के अंदर भी अगर आप देखें तो नया टेल है, फाइबर स्ट्रॉम है, इसी तरह मोबिलिंक है, इसी तरह टेलीनॉर है, इसी तरह टेलीनॉर है, यूफून है, ब्ला ब्ला जितने भी हैं। इसी तरह ये इसके साथ भी सऊदी टेलीकॉम के साथ भी कनेक्टेड है, इसी तरह ये यूएई के साथ भी कनेक्टेड है, इसी तरह ये यूरोपियन यूनियन के साथ भी कनेक्टेड है। यूरोपियन यूनियन जब कहता हूं तो इसका मतलब है कि 22 ममालिक, और तो कहने का मकसद यह है कि इस तरह ये अमेरिका से भी है। तो मैं पूरे के एक एक तो नहीं बना सकता ना, तो हम कहते हैं क्लाउड है, बस इसमें बहुत हैं, सब एक साथ कनेक्टेड है। जी, एनी अदर क्वेश्चन? सर जी ये गूगल क्लासरूम पर आपकी क्लास विजिबल नहीं है। गूगल क्लासरूम पे मेरी क्लास विजिबल नहीं है सर, मुझे दिखाई नहीं दे रही, मैंने देखा है सर। आप सेक्शन बी में है, और ये गूगल क्लासरूम है, और ये सेक्शन बी है, CSC 303 डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क स्प्रिंग 21। मेरे ख्याल, क्या आप बाकी लोगों को विजिबल है जी? यस सर, विजिबल है सर। सर मुझे CMS से उसकी मैसेज नहीं आई इनविटेशन के लिए। नहीं, वो उन्होंने इस बार किसी को भी नहीं भेजा जी। वो मुझे नहीं पता इशू क्या है, रीजन क्या है, लेकिन किसी को भी उन्होंने इनविटेशन नहीं भेजी हुई। मैंने आप लोगों को ये भेज दिया था कि ये आपका क्लासरूम है। मैं यहाँ पे फिर इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, आपके यहीं पे कर देता हूँ ताकि आपको मिल जाए। और बाकी मैं इसको किस तरह मैनेज करता हूँ कि मैं क्लास से 2-4 मिनट पहले आप लोगों को ईमेल भी कर देता हूँ, आपको मैं उसके जरिए जियादुल्लाह के थ्रू व्हाट्सएप भी कर देता हूं। इस बार उन्होंने आपको नहीं भेजी डायरेक्टली, मुझे नहीं पता क्यों नहीं भेजी, लेकिन नहीं भेजी जी। सर भेजिए, सर डायरेक्टली भेजिए, भेजिए ग्रुप में भेजिए सर, क्लास से। अच्छा, किसी ग्रुप में भेजी होगी, लेकिन यहाँ पे ऐड नहीं किया हुआ ना। बेसिकली अगर यहाँ ऐड किया होता तो जब मैं पीपल में आता तो मैं यहाँ से आपको ईमेल भी कर सकता था। और नहीं, अब तो ये डाल दिया जी, पहले नहीं थी लेकिन अब डाल दिया हुआ है। मोहम्मद अब्बास ब्लाब, दैट्स गुड। तो अगर आपका कोई इशू है, देखिए मैं आपको ईमेल भी कर सकता हूँ, 38 स्टूडेंट ऐड किए हुए हैं, तो अब मसला नहीं है। तो अगर फिर भी आपको कोई इशू है, आपका क्या नाम है जो बोल रहे हैं, क्या नाम है आपका? सनाउल्लाह। ये जी सना हिदायतुल्लाह, यही हैं आप? नो सर, ये दूसरी जनरल, ये डिफरेंट है। अच्छा, तो फिर आप रहमत साहब से बात कर लें। रहमत साहब को तो जानते हैं ना? यस सर। तो उनसे बात कर लेंगे जी। मैं सेक्शन बी में हूँ। और जी सर, ये क्लास कोड पे ज्वाइन हो सकता है सर? ज्वाइन तो हो सकता है, उसमें तो इशू नहीं है, लेकिन कल आपका रिजल्ट नहीं बनेगा। यानी कि ये आपको बता रहा है कि आप रजिस्टर्ड स्टूडेंट नहीं है। जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं उनका नाम यहाँ पे मौजूद है, या तो आप किसी और सेक्शन में हैं, तो इसलिए बेहतर है कि आप इस चीज को रिजॉल्व करवा लें। सर ये बाकी क्लासेस में मैं रजिस्टर हो सर जी, सेक्शन बी का। तो ये कह रहा हूँ ना जेंटलमैन, क्या आप मतलब मैं आपको ऐड इसलिए नहीं कर सकता कि कल मैं आपका रिजल्ट नहीं दे सकूंगा। तो बेहतर ये है कि आप रहमत साहब से कांटेक्ट करके उन्हें कहेंगे जी मेरा नाम 38 स्टूडेंट में नहीं है, तो काइंडली उसको आप ऐड कर दें। तो वो जब ऐड करेंगे तो
फिर वो कल उनको अपने रिजल्ट भी मुझे जब भेजेंगे, जब वो अटेंडेंस भी भेजेंगे, तो वो उसमें आपका नाम अवेलेबल होगा। इस तरह मैं यहाँ ऐड कर दूंगा, रिजल्ट कल सबमिट होने जाएगा, वो कहेंगे जी ये नाम तो हमने आपको नहीं दिया हुआ। ठीक है एक्सक्यूज मी सर, जी। सर अगर ये सीएमएस ऑपरेटर से कांटेक्ट कर लें वो कर देंगे ऐड? एक ही बात है, जब मतलब सीएमएस ऑपरेटर भी जो है वो रहमत साहब के अंडर ही है ना, सेमेस्टर कोऑर्डिनेटर के अंडर आता है। तो चाहे आप सीएमएस ऑपरेटर से बात कर लें, चाहे आप रहमत साहब से बात कर लें, चाहे आप हमाद साहब से बात कर लें, आपका मसला रिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है सनाउल्लाह? ठीक है सर जी। ओके जी। इज देयर एनी अदर क्वेश्चन? यस सर। जी पूछें। सर ये वायरलेस और वायर्ड में आप थोड़ा सा मजीद हमें बताएं कि ये कौन सा मोस्ट बेनिफिशियल है। मतलब अगर मैं लैपटॉप में वायर्ड कनेक्ट हूँ और मोबाइल पे वायरलेस कनेक्ट हूँ तो इसका ट्रैफिक पे क्या असर पड़ेगा और स्पीड पे? लाजमी तौर पे वायर्ड की ट्रैफिक जो है वो बहुत, वायर्ड की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो बहुत बेहतर हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं ऑप्टिकल फाइबर पे कनेक्ट हूं तो आई कैन गेट अप टू 10 गीगाबिट पर सेकंड और इवन 40 गीगाबिट पर सेकंड। तो डेफिनेटली उस जगह पे अब वायरलेस नहीं है। लेकिन अगर मैं मूव करना चाहता हूं तो मैं तार को लेकर मूव नहीं कर सकता, मैं तार को लेकर मूव नहीं कर सकता। तो दोनों के अपने प्रॉज एंड कॉन्स होते हैं। हर चीज जैसे आप देखें ना, वायरलेस अगर हम ये यूं कहें कि ऑनलाइन क्लास बेहतर है कि ऑन कैंपस बेहतर है, तो किसी को ऑनलाइन अच्छी लगेगी, किसी को ऑन कैंपस अच्छी लगेगी। वो लोग जो कि टीचर के साथ फेस टू फेस बात करना चाहते हैं उनका अपना एक वो है, ठीक है। जो कहते हैं नहीं जी ऑनलाइन तो बहुत अच्छी है, हमें रमजान में अब हम हॉस्टल के खाने खा रहे होते हैं, अब हम घर के खाने खा रहे हैं, हमारा टाइम आने जाने का बच रहा है, हमारे और अखराजात में कमी आ गई है। मिसाल तो पे हम ट्रैवल करते थे, तो हर एक के अपने प्रॉज एंड कॉन्स होते हैं। कोई भी चीज अल्लाह ताला के अलावा कोई भी चीज मुकम्मल नहीं है। तो दोनों वायरलेस के अपने फायदे, वायरलेस में सबसे अच्छा फायदा जो है वो ये है कि मोबिलिटी है, अवेलेबिलिटी एवरीवेयर है, जो कि वायर के साथ आप किसी सूरत भी नहीं कर सकते। आप इवन यही मोबाइल लेके यूरोप चले जाएं, आप यही मोबाइल लेके अमेरिका चले जाएं, इट विल बी वर्किंग। लेकिन आपके घर में जो फोन लगा हुआ है, PSTN लगा हुआ है, वो लेके तो आप नहीं घूम सकते जी। एनी अदर थैंक यू सर। इज देयर एनी क्वेश्चन फर्दर? So if there is no question, okay ji, thank you very much. See you inshallah tomorrow. Till then, Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज़। हाफिज सर। अल्लाह हाफिज सर।